नमस्कार। सूखी डाली नामक जो एकांकी है सेकेंड ईयर के हिंदी टेक्स्ट बुक में जो कि उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है, इसका दूसरा दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार बेला को लेकर घर के सभी सदस्य गुस्सा हो जाते हैं और बेला के प्रति सभी घृणा रखते हैं। और दूसरे दृश्य में क्या होता है यह मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। जब पर्दा उड़ता है तो उस समय स्टेज पर दादाजी और करमचंद मौजूद है। करमचंद यानी दादाजी का दूसरा बेटा है। तो इन दोनों के बीच में बातें होती है। बातें होने के बाद करमचंद के द्वारा यह पता चलता है कि परेश घर से अलग होना चाहता है। तो दादाजी को कभी भी यह मंजूर नहीं कि उनके घर से कोई सदस्य अलग हो जाए। तो इसीलिए उनको बहुत ही बुरा लगता है कि अब तक किसी ने उन्हें बताया क्यों नहीं। और वे सब कुछ समझ जाते हैं कि क्या करना है। और इसके बीच में परेश स्टेज पर आ जाते हैं। आने के बाद वह दादा से सब कुछ बताते हैं कि किस प्रकार बेला घर से अलग होना चाहती है और बाग वाले जो मकान है तो वह उनको देने के लिए आग्रह करती है। तो दादाजी कहते हैं कि मेरे जीते जी यह मुमकिन नहीं है और बेटा मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बेला को यह देखना कि उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी न महसूस हो। उसके बाद परेश चले जाने के बाद घर के सभी सदस्यों को दादाजी बुलाते हैं और सभी सदस्यों को यह बता देते हैं कि किसी भी तरह से बेला को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने के लिए जो समय की आवश्यकता है वह समय आपको उसे देना है और उसके अगर कोई काम है तो आप लोगों को आपस में बांट लेना चाहिए। इस प्रकार सब कुछ बता देते हैं। और अंत में इंदु और मंजली बहू को खास तौर पर बेला के प्रति सतर्क रहने के लिए दादाजी उनको बताते हैं कि आप लोगों से किसी भी तरह की कोई तकलीफ बेला को नहीं होना चाहिए, यह बता देते हैं। तो यह बताने के बाद कहानी का जो रुख है यह बदल जाता है। दादाजी के विचार यहाँ है कि घृणा को घृणा के बदले नहीं मिटाया जा सकता, कि अगर छोटा सा घाव है तो उस घाव को पहले से ही अगर मरहम लगा दे तो वह बड़ा नहीं होगा और वह बड़ा होकर नासुर नहीं होगा। यह दादाजी के विचार है और दादाजी अपने परिवार को एक महान वट वृक्ष मानते हैं और उसमें से कोई एक डाली भी अलग होना नहीं देना चाहते। यह दूसरे दृश्य में हम देखते हैं। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದೊಳಗ ದಾದಾಜಿ ಮತ್ತು ಕರಮ್ಚಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತಿರ್ತಾರ। ಪರ್ದೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾದಾಜಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂದ್ರ ಪರೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ಯಾನಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಗನ ಮಗ ಅವ ಬ್ಯಾರೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ದಾದಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ। ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ದಾದಾಜಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದ। ಆದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಏನ ಬೇಲಾ ಅದಳ, ಆ ಬೇಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾಳ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ದಾದಾಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಾಯ ಅವರು ಹುಡುಕಿಡ್ತಾರ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರೇಶ್ ಬರ್ತಾನೆ। ಪರೇಶ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಯಾಕೆ ಬೇಲಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಿನ್ನ ಬಹಳ ಕಾಡಿಸ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಾರು ಆಕಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಾರು ಆಕಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ದಬಾಯಿಸಾಕ್ ನೋಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ। ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಗ ಮತ್ತವ ದಾದಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ದಾದಾಜಿ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೇವಿ, ಮತ್ತು ತೋಟದಾಗಿಂದ ಏನ್ ಮನೆ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಮನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾದಾಜಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದಾದಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಇರೋ ತನಕ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ದಾದಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರ। ಪರೇಶ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದಾದಾಜಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರ। ಕರೆಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬೇಲಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಲಾನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇಲಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇಲಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಆಕಿನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಾಕೀತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ಮತ್ತ ಈ ಮಂಜಲಿ ಬಹುವನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಕತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಲಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಳನ್ನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರ
ನಾನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾನಕ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೂನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो। अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बच्चे बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। और हमारे यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। क्या कहते हो? कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए। परेश, पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घरानों को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। बेटा, बड़प्पन बाहर के वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़? क्यों उखाड़ा? पेड़? बच्चे ठहरो भासी, लड़ो मत बेटा। जाना करमचंद, जरा हटाना दोनों को। आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं लज्जित। नहीं धुले हो तो धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ, इधर आकर बैठो। मुझे अब करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे
और मरमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। जभी तो मैं कहता हूं कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। जी और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। जी, मैं इसलिए आया था। हाँ हाँ, कहो, झिझकते क्यों हो? जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी कई दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। वह मन लगाते ही नहीं। तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी, किंतु उसके हाथ बिक गया है तो उसे कुछ नहीं समझाता। और इधर वह उन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। हाँ हाँ, कहो। बात यह है कि वह आजादी चाहती है। दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। वे समझती है कि वह छोटी बहू है, इसीलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला न हो, जहां वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें। उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है, और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती है और वे केवल ठूंठ रह जाता है, और मैं सिहर उठता हूं। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा,
किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। जैसा आप उचित समझे। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिससे वह अपना अपमान समझे। और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। जैसी आपकी इच्छा। रजवा, 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 ओ रजवा। जी आई। छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। जी, मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। जी आई। मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। बैठो बेटा। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दादाजी? इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आर्डर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले और मैं प्रसन्न हूँगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों ही से पेड़ है और डालियां छोटी हो या बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूट कर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या फिर उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं।
बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेष कर सावधान रहने का आदेश करता हूं। अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़े, फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के परस से झूमे और सरसाएं। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। भाषी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाएं, बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की। हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। एक था बरगद का पेड़। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है।